pitch of the teacher's voice in the classroom is described as? See, pitch, tone, volume, pause, all these are parts of paralinguistics, which is non-verbal communication, right? So pitch of the classroom, pitch of the teacher in the classroom is paralinguistic. What is linguistic? I'll explain all the options. Linguistic means anything related to language. Paralinguistic means equivalent to language, usage of language, such as tone, voice, pitch, voice modulations. Non-linguistic means non-language, that is kinesics, the facial expressions and all. And macro-linguistic is the words which are used with expression in the language, the connotative meanings of the words in the language, that is macro-linguistic. Next, broad meaning of the words. Below are two statements, assertion, reason. Of the many mediums available for communication in the classroom, oral and written are two mediums. Yes, that is right. There are many mediums available in the classroom, which is oral, written, non-verbal. These two are also two mediums. Communication by any means does not occur without intermediation of the encoder's expression. No, it is wrong. बिना एनकोडर के एक्सप्रेशन के कम्युनिकेशन नहीं हो सकता क्या? हो सकता है. रिटन कम्युनिकेशन में एक्सप्रेशन नहीं होते. तो ये तो बोल रहा है कि by any means does not occur. No, it can occur. So first is assertion is correct, but reason is wrong. So option number C. Next question. When there is an animated discussion between a teacher and his students in the classroom, animated means lively. Animated means friendly, right? Lively, friendly discussion between a teacher and his students. तो ये तो friendly discussion, lively discussion तो horizontal communication को बोलते हैं. So the answer is A. Mechanical is something which is done by machines. Linear communication is when a teacher is structuring or presenting the contents to the students, and the students are not allowed to answer or to give suggestions or doubts. And categorical communication means that communication which is dependent only on categories, right? So it is horizontal. Next, effective oral communication demands. Now, effective oral communication demands self-confidence, yes. Long pause, no. Short pauses. Consistent practice, yes. Business-like approach, no. Knowing the audience, yes, you should know your audience if you want effective communication. Aggressive questioning, no, not at all. So A, C and E is the correct answer. A, C, E. Next question. Which of the following are essential for good classroom communication? Overemphasis on certain words. See, overemphasis is not good in communication. Use of gobbledygook. Gobbledygook मतलब होता है उल्टा सीधा बात करना, फालतू बातें करना, है ना? Gobbledygook means using irrelevant words in your communication, senseless words which have no actual relevance to the communication. That is called gobbledygook. इधर उधर की बातें करना, that is gobbledygook. गप्पे मारना, इधर उधर की बातें करना, that is never good in classroom communication. एक टीचर जो सब्जेक्ट के अलावा फालतू बातें करता है, गप्पे मारता है, अरे आज मैंने ना फलानी गाड़ी खरीदी और वहाँ लेके उस गाड़ी को लेके मैं मेरे फ्रेंड के यहाँ गया, वहाँ पे हमने चाय पी. ना, दिस इज gobbledygook. Students are not interested in your things, है ना? They are more interested in the knowledge that you want to share. So gobbledygook is never good in classroom communication. Proper employment of redundancy. Redundancy means repetition. अब यहाँ एक खास बात आपको बता दूं, repetition is not good, but यहाँ पे लिख दिया proper employment of redundancy. जहाँ पर repetition की जरूरत है
रिवाइज कराने के लिए कुछ, उसका प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अगर आप करते हो, रिडंडेंसी का, रिडंडेंसी इज एक्चुअली कंसिडर्ड इररेलेवेंट रिपीटिशन। रिडंडेंसी का एक्चुअली मतलब होता है बिना जरूरत के आप रिपीटिशन कर रहे हो, यूजलेस रिपीटिशन, राइट। बट यहां पर उसने एक वर्ड बोल दिया, खाली रिडंडेंसी होता तो आप गलत कर देना। प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिडंडेंसी मतलब रिपीटिशन का प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट करना, दैट इज करेक्ट। इमीडिएसी ऑफ फीडबैक, हाँ, फीडबैक तुरंत अगर आता है तो वो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में इमीडिएसी ऑफ फीडबैक की वजह से ही वो देयर इज अ चांस टू इंप्रूव। नॉन वर्बल क्यूज, यस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है और उसकी जो हेल्पफुल फैक्टर्स हैं वो बहुत अच्छा करते हैं आपका कम्युनिकेशन। साइडलाइनिंग स्टूडेंट्स क्रिटिसिज्म, नो, इट इज नेवर गुड। यू शुड ऑलवेज कंसिडर स्टूडेंट्स क्रिटिसिज्म, यू शुड नॉट साइडलाइन इट। स्टूडेंट की क्रिटिसिज्म को साइडलाइन कभी मत करो, उल्टा कंसिडर करो उसको, टॉप प्रायोरिटी रखो। सी, डी एंड ई इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th, माइक्रो एक्सप्रेशंस एज पार्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन आर। देखो बच्चों, माइक्रो एक्सप्रेशन का मतलब होता है ये जो टीचर बोलते बोलते जो छोटे छोटे एक्सप्रेशंस, जो हाउ आर यू, दिस इज माइक्रो एक्सप्रेशन। एकदम से बात करते करते स्माइल कर दी फिर वापस यूं हो गए, दिस इज माइक्रो एक्सप्रेशन। तो माइक्रो एक्सप्रेशंस होते हैं जो फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकेंड के लिए या बहुत कम टाइम के लिए आप एकदम से यूज करते हो ड्यूरिंग योर कन्वर्जेशन, ड्यूरिंग योर कम्युनिकेशन। तो ये बहुत, दे आर वेरी शॉर्ट लिव्ड प्रोसेस, बहुत इनका जो प्रोसेस होता है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए इनको कहते हैं फ्लीटिंग। फ्लीटिंग इज समथिंग विच इज क्विक, विच इज फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, दैट इज फ्लीटिंग। तो फ्लीटिंग का मतलब होता है विच इज क्विक एंड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। तो माइक्रो एक्सप्रेशंस भी ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ मोमेंटरीली आपके कम्युनिकेशन करते करते बीच में मोमेंटरीली आप स्माइल कर देते हो, मोमेंटरीली आप इशारा कर देते हो, बस ऐसे। तो ये सब फ्लीटिंग है, मतलब माइक्रो एक्सप्रेशंस है। फ्लीटिंग मतलब जो एकदम कुछ क्षणों के लिए, कुछ मोमेंट्स के लिए हो, मैनिपुलेटिव नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है। इन अ लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड रिजल्ट इज, देखो बच्चों, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है ना, वो फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, जिसमें स्टूडेंट को डाउट पूछने के परमिशन नहीं होती। तब उस समय टीचर के ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है कि वो इस तरह से लैंग्वेज को यूज़ करे, ऐसे सिंपल वर्ड्स और ऐसे मीनिंग क्लियर कर दे, उसका जो उसकी लैंग्वेज है वो इतनी प्रिसाइज हो कि स्टूडेंट को डाउट पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े। देयर शुड नॉट बी एनी डाउट्स अराइज्ड। तो इसको बोलते हैं सिमेंटिक प्रिसीशन। प्रिसीशन मतलब प्रिसाइज हो आपकी लैंग्वेज, है ना, और सिमेंटिक मतलब लैंग्वेज, बेस्ड ऑन लैंग्वेज। तो सिमेंटिक प्रिसीशन एक्सपेक्टेड रहता है। जब आप लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन करते हो तो जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है दैट इज सिमेंटिक प्रिसीशन, बिकॉज यू हैव अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सप्लेनिंग योर लैंग्वेज और योर कंटेंट टू द स्टूडेंट, कंसिडरिंग इन माइंड that he is not allowed to question. So now there should not be any doubts left. So you should be semantic in your, you should be precise in your semantics. Semantics means your words, your language. High level of separation kabhi nahi, cessation of physical noise no, and psychological distortion no. Psychological distortion थोड़ी करना आपको। क्या linear model psychological distortion करता है? No. Physical noise को कम करता है? No. High level of separation करता है? No. Semantic precision is the expected result. Eighth, which of the following modes of communication can be employed in a classroom for effective communication? देखो, टॉप डाउन है ना, वो कभी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता। टॉप डाउन मीन्स लीनियर कम्युनिकेशन, इट इज नेवर गुड। आइकॉनिक इज गुड, जब आप कोई ऐसी कम्युनिकेशन करते हो जिससे आप आइडियल कम्युनिकेशन करते हो, है ना, आप बिल्कुल आइडियलिस्टिक बातें करते हो, देन इट इज गुड। एसोसिएशनल, यस, आपको हमेशा एसोसिएशनल कम्युनिकेशन करना चाहिए जिससे चीज़ों को एक के साथ दूसरे को एसोसिएट करें। योर वर्ड्स शुड एसोसिएट विद द एप्लीकेशंस। डिसएसोसिएशन नो, शुड नॉट बी। सिंबॉलिक, यस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होना चाहिए, सिंबॉलिक होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट नो। सो बी, सी एंड ई इज द करेक्ट आंसर, राइट।
Two statements, assertion and reason. Assertion is communication does not include all human behavior for exchange of information. No, that is wrong. It actually includes all human behavior. Communication जो है ना वो सभी human behavior को include करता है. Communication involves the use of all 5 senses. Yes, that is correct. It uses the senses, all the 5 sense organs. So A is wrong and R is true. This is correct. I hope it is clear. A teacher tells his students, when you learn this, you will be able to carry out your project. Now, this is a positive and creating enthusiasm kind of statement. स्टूडेंट को टीचर बोल रहा है आप पढ़ोगे तो आप टॉप कर जाओगे. इफ यू आर एबल टू डू दिस यू विल बी एबल टू कैरी आउट योर प्रोजेक्ट. ये कर लिया तो आप प्रोजेक्ट कर लोगे आराम से. मतलब ये पॉजिटिविटी फैलाने के वाले वर्ड्स है. दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, है ना, जिससे आप स्टूडेंट को है उसको पॉजिटिविटी दे रहे हो, जिससे उसको बोल रहे हैं हाँ ये कर लेगा, यू कैन डू इट, एंड इफ यू डू इट यू विल बी एबल टू कैरी आउट योर प्रोजेक्ट और यू विल बी सक्सीडिंग. सो दिस इज नॉट कंटिन्यूड इंटरेस्ट and ambiguous मतलब confusing advice नहीं, and it is neither a threat also. It is positive reinforcement. स्टूडेंट को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे रहा है टीचर. रीइंफोर्समेंट मतलब कि उसको एनकरेज कर रहा है एंड पॉजिटिविटी एंथ्यूज कर रहा है. सो दैट इज ऑल फॉर द फर्स्ट पेपर. सी यू इन द नेक्स्ट टेस्ट पेपर. नमस्कार.